آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ جوش و خروش سے منایا گیا شہر میں وجے دن۔ ڈیفنس کیریئر اکیڈمی کے طلباء نے شہر میں کیا وجے مارچ۔ علاقے پر چڑھنے لگا تھا حب الوطنی کا خمار۔ مفاد عامہ کی خاطر انتظامیہ شفافیت سے کام کرے۔ حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی مختلف اسکیمات کا جائزہ لینے کے بعد چیف سیکرٹری راجیش اگروال نے دی اورنگ آباد ڈویژن کے افسران کو ہدایت۔ مولانا آزاد کالج کے احاطے میں منعقد کیا گیا زکریا سائنس ایکسپلوریشن 2025۔ 45 اسکولوں کے 145 طلباء نے کی شرکت۔ سائنسی تجربات اور میوزیم کا مشاہدہ کرنے کے بعد اساتذہ سے پوچھے کئی اہم سوال۔ پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی نے دی اطلاع۔ اور سال 2012 میں جالنہ میں 2 سالہ معصوم بچی کے ساتھ ہوئی زیادتی اور قتل معاملے کے ملزم کی صدر جمہوریہ نے مسترد کر دی رحم کی اپیل۔ عدالتی فیصلوں پر صدر جمہوریہ کی مہر ثبت ہو جانے پر مجرم کو جنوری کے مہینے میں دی جائے گی پھانسی۔ ایس پی اجے بنسل نے دی وضاحت۔ خبریں تفصیل سے۔ وجے دن کے موقع پر ڈیفنس کیریئر اکیڈمی کی جانب سے آج شہر میں وجے مارچ کیا گیا، جس میں اکیڈمی کے طلباء نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حب الوطنی کا مظاہرہ کیا۔ یہ وجے مارچ نوتن کالونی سے شروع ہو کر کرانتی چوک تک نکالا گیا۔ ڈیفنس کیریئر اکیڈمی سینک اسکول کے طلباء نے انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ مارچ کرتے ہوئے حب الوطنی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ وجے دیوس کے موقع پر نکالے گئے اس وجے مارچ کی وجہ سے پورا علاقہ حب الوطنی کے رنگ میں رنگ گیا تھا۔ شہریان نے بھی اس اقدام کی بھرپور ستائش کی اور طلباء کا جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا۔ ڈیفنس کیریئر اکیڈمی سینک اسکول کے اس اقدام سے نوجوانوں میں ملک کی خدمات کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور وجے دیوس کی اہمیت ایک بار پھر اجاگر ہوئی ہے۔ مذکورہ ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کیدار رہانے نے کہا کہ وجے دیوس ہمارے ملک کی بہادری اور قربانیوں کی علامت ہے۔ اس وجے مارچ کے ذریعے ہم طلباء میں ملک سے محبت اور نظم و ضبط کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر بالا صاحب ٹکلے نے کہا کہ ڈیفنس کیریئر اکیڈمی سینک اسکول کا مقصد نوجوانوں کو دفاعی خدمات کے لیے تیار کرنا ہے۔ ایسے پروگرام طلباء میں اعتماد اور ملک خدمت کا جذبہ مضبوط کرتے ہیں۔ وجے دیوس کے موقع پر منعقد اس وجے مارچ نے نہ صرف شہر میں حب الوطنی کا ماحول پیدا کیا بلکہ نوجوانوں کو ملک کی خدمت کے لیے حوصلہ اور ترغیب بھی دی۔ کر رہا تھا لیکن اس نے کچھ اور پروفیشن لے کے آرمی کی سیوا کرنے کے الگ مارگ ڈھونڈے تھے، تو یہ ہے میجر ہوشیار سنگھ۔ دوسرے جو نام آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ ہے اس ٹائم فلائنگ آفیسر نرمل جیت سنگھ سیکھو، جن کو بھارتیہ سرکار نے ایئر فورس فلائنگ آفیسر کے لیے بڑھیا کام کرنے کے لیے ان کو پرم ویر چکر سے سمانت کیا گیا تھا۔ یہ ہیتو سامنے رکھتے ہوئے یہ پروگرام آج آیوجت کیا ہے اور آنے والی نئی پیڑھی میں راشٹر بھاونا، راشٹر پریم اور راشٹریہ سرکشا کے مولیوں کو پریرت کرنے کے لیے یہ چیز نشچت ہی کام آئے گی۔ ایک سینک کو یا کسی بھی وردیدھاری آدمی کو، سینک ہو، پولیس ہو، سینٹرل فورس، آرم فورسز ہو، وردی میں جانا، وردی کے لیے اپنی جان لگانا اور وردی میں اپنی سروس دینا، یہ اپنے آپ بہت बड़ी बात आहे। 16 डिसेंबर म्हणजे 16 डिसेंबर हा 1971च्या लढाईमध्ये आपल्या भारतीय सैनिकांनी, ऑफिसरनी जे युद्ध जिंकलं होतं त्याचं स्मरण पुन्हा व्हावं यासाठी हा विजय मार्च काढण्यात आला आणि या कार्यक्रमासाठी आवर्जून ब्रिगेडियर अनुप बरबरे साहेब आले, त्याचप्रमाणे डेप्युटी कमिशनर नवले साहेब आले और यांनी विद्यार्थ्यांना जे मार्गदर्शन केलं आणि 71च्या युद्धामध्ये ज्याप्रमाणे सैनिकांनी पूर्ण समर्पणाने देशसेवेसाठी आपला जीव दिला आणि हे देत असताना कुठे मागे पुढे बघितलं नाही, अशा शहीद जवानांना त्यांना श्रद्धांजली जावी, त्यांचं स्मरण व्हावं यासाठी हा कार्यक्रम घेण्यात आला होता। AMC انتخابات کے پیش نظر شیو سینا ادیوگ گروپ بھی خواہش مند امیدواروں میں ان دنوں فارمز تقسیم کر رہا ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے رہنماؤں نے اس بات کے عزم کا اظہار کیا کہ اس مرتبہ میونسپل کارپوریشن الیکشن میں
शिवसेना उद्धव ग्रुप ही फातेह रहेगी और एएमसी पर शिवसेना उद्धव ग्रुप का ही झंडा लहराएगा। नाजरीन, शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को फॉर्म देने का अमल शुरू हो चुका है। पार्टी क़यादत का कहना है कि जो कारकुन वफादार और निष्ठावान होंगे उसी को मौका दिया जाएगा। यही पार्टी का बुनियादी उसूल है। पार्टी रहनुमाओं का दावा है कि अवाम के दिलो दिमाग में सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ही है और आने वाले दिनों में मशाल का इंतखाबी निशान हर तरफ नजर आएगा। इस सिलसिले में साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने मीडिया से बात करते हुए अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतर चुकी है और कारकुनों में ज़बरदस्त जोश पाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब राजू वैद्य ने भी इंतखाबी मैदान में उतरने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो दोबारा बतौर कारपोरेटर आवाम की खिदमत की जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र औरंगाबाद में सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि अवाम किस पार्टी पर अपना एतमाद जाहिर करते हैं। आम्ही आमची तयारी जी आहे ती आम्ही मनापासून करतोय आणि जे असे 80% समाजकारण 20% राजकारण मानणारे कार्यकर्ते आहेत त्यांनाच पुढे आणणार आणि शिवसेना प्रमुखांचा आशीर्वाद आहे, माननीय उद्धव साहेबांचं नेतृत्व आहे आणि हा जो गड आहे तो गड जो आहे तो शिवसेना प्रमुखांचा गड आहे की जे त्यांनी आम्हाला मोठं केलेलं आहे आणि म्हणून किती काही जरी झालं तरी लोक इकडे तिकडे गेले तरी लोकांचं मत आज काही जरी झालं तरी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या बरोबर आहेत. अनेक जण मला भेटले पण मला बोलता पण मी बऱ्याच ठिकाणी जातो तेव्हा मला सांगतं की काळजी करू नका, तुम्ही हे किती जरी उत्मात करू लागले तरी काही होणार नाही, आपलं कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आपणच त्या ठिकाणी येऊ शकतो, आमचा तुम्हाला सपोर्ट आहे. महापालिकेवर भगवा जो फडकणारा आहे तो फक्त उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या गटाचाच या शिवसेनेचाच फडकणार आहे. त्यामुळे उद्धव साहेबांच्या बाबतीत जे काही लोकांचं मत आहे की ते शिवसेना प्रमुख चिरंजीव आहे आणि म्हणून एक प्रकारचं ते वल्ल वेगळं आहे. आज किती जरी दोन संघटना झाल्या तर कोणी केलं काय केलं, मी या संभाजीनगरच्या जनतेला आठवण करून देतो. 1988ला आम्ही ज्यावेळेस नगरसेवक म्हणून निवडून आलो होतो त्यावेळेस 15 नगरसेवक फुटले होते. ते 15 नगरसेवक फुटल्यानंतर सुद्धा माझी पहिली विधानसभेची निवडणूक होती. त्या पहिल्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये मी उभा राहिलो. जितके फुटले त्याच्या 4-4, 5-5 पटीने मला मतदान मिळाले. त्याच्या वाड्यात जेवढे त्याला मतं मिळाले त्याच्या 4-4, 5-5 म्हणजे लोकांना गद्दारी आवडत नाही आणि म्हणून गद्दारी न करता गद्दारी करू नये म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला होता की आपण ओरिजिनल बाळासाहेबांच्या बरोबरच राहायचं आहे, शिवसेनेला बरोबर हे करायचं उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या. आता म्हणून आतापर्यंत ज्यावेळेस छगनराव भुजबळ फुटले होते त्यावेळेस सुद्धा त्या ठिकाणी त्यावेळेस 15 आमदार फुटले होते. त्याच्यानंतर लगेच सत्ताच आपली आली. फुटल्यानंतर सत्ता शिवसेनेची येत असते. आता या जितके फुटले ना, आता पहा तुम्ही इतके फुटलेले आहे पण उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या शिवसेनेचाच विजय होणार आहे हे लोकांना कळून चुकलं. शिवसेनेची ही मागच्या 30-35 वर्षातली परंपरा आहे. प्रथम प्राधान्य हे एकनिष्ठतेलाच असतं आणि दुसरा महत्वाचा विषय आहे की निवडून येणारा कार्यकर्ता जो एकनिष्ठ आहे आणि निवडून येऊ शकतो अशांना आम्ही उमेदवारी देणार. म्यूनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र अब बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप के दरमियान जारी सरजंग ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है, जिसके इशारे आज दोनों ही सियासी जमातों के कायदीन के दरमियान हुई मीटिंग से मिलते हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप के दरमियान जारी सरजंग के मनाजिर आपने देखे ही होंगे। इसके बाद रियासत भर में ये चर्चे जारी थे कि महाराष्ट्र में होने वाले लोकल बॉडीज़ इंतखाबात में शिवसेना शिंदे ग्रुप और बीजेपी के दरमियान दरार पड़ चुकी है और वो लोग अलग अलग इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन ये चर्चे महज अफवाह साबित हुए। आज इस ज़िमन में औरंगाबाद शहर में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे ग्रुप के दरमियान एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बीजेपी के शहर सदर किशोर सितोड़े मौजूद थे। मीटिंग के दौरान बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप के दरमियान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात महायुति के ज़रिए लड़ने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। किशोर सितोड़े ने बताया
کہ महायुति के तहत ही इंतखाबात लड़ने पर इब्तदाई सतह पर इत्तेफाक राय हुआ है, ताहम सीटों की तकसीम के बारे में हतमी फैसला करने के लिए दोबारा एक और मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगली मीटिंग के बाद ही सीटों की तकसीम पर कोई हतमी ऐलान किया जाएगा। म्यूनसिपल इंतखाबात करीब आते ही महायुति में शामिल जमातों के दरमियान मुशावरत के लिए सियासी माहौल मजीद गर्म होने के आसार हैं। अब सबकी नज़रें बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप की आइंदा होने वाली मीटिंग पर मरकूज हैं, जहां से म्यूनिसिपल इंतखाबात की हतमी हिकमत अमली सामने आने की उम्मीद है। संभाजीनगर भारतीय जनता पार्टी व छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना महायुतीची चर्चा आम्ही पहिली फेरी आम्ही सुरू आज केली आणि यामध्ये आम्ही महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत महायुतीतच लढणार या अनुषंगाने अतिशय चांगल्या वातावरणामध्ये सकारात्मक वातावरणात आमची चर्चा झालेली आहे आणि त्याच्यात एकूण प्रभागांची रचना, जातीय समीकरणं आणि तिसऱ्याला काही लाभ होणार नाही अशा अनुषंगाने काय आपल्याला व्यवस्थापन करता येईल त्या पद्धतीने आम्ही सगळ्यांनी सांगोपांग चर्चा केलेली आहे आणि परत उद्या आम्ही बसणार आहोत आणि उद्या आम्ही या युतीच्या बद्दलचा निर्णय आपल्याला कळवूयात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ रियासत भर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ये बयान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर व साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील ने दिया है। सहाफ़ियों की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इंतखाबी समझौते से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी भी सियासी पार्टी को इंतखाबी समझौता करना है तो वो रियासती सतह पर होगा, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सतह पर हरगिज़ नहीं। देखिए, अगर कोई युति करना चाह रहा है तो महाराष्ट्र लेवल के ऊपर बात करें। अगर सिर्फ वो ये कहेंगे कि हमको औरंगाबाद के अंदर युति करने का है तो उनका मकसद ये है कि जो हमारा गढ़ है उस गढ़ के अंदर से जो सीटें हैं वही सीटें वो मांगना चाह रहे हैं, तो हमें ऐसा कोई भी गठबंधन कबूल नहीं ये है। अगर किसी बड़ी पार्टी को करने का है तो वो महाराष्ट्र लेवल के ऊपर बात करें, हम उसके लिए ओपन हैं। AMC इंतखाबात से कबल शहर में सियासी उथल पुथल जोरों पर जारी है। शिवसेना उद्धव ग्रुप के कई सीनियर कायदीन ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिवसेना शिंदे ग्रुप का दामन थाम लिया। नाज़रीन, AMC इंतखाबात के लिए बिगुल बजते ही सियासी जमातें सरगर्म हो चुकी हैं और इख्तिदार हासिल करने की गर्ज से सियासी कारिंदे अब अपने अपने हिसाब से सियासी जमातों को चुनने लगे हैं, जिसके तहत शिवसेना उद्धव ग्रुप के नायब जिला सदर बाबा साहब डांगे, गिरजाराम हार्नोर, सुमित्रा हार्नोर और साबिक कारपोरेटर छाया राउत वो विलास राउत ने आज बाज़ाब्ता तौर पर शिवसेना शिंदे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये शमूलियती प्रोग्राम औरंगाबाद ज़िले के सरपरस्त वज़ीर संजय शिरसाट की मौजूदगी में पार्टी के राब्ता ऑफिस पर मुनक़िद हुआ। इस मौके पर शिवसेना के ओहदेदारों ने नए शामिल होने वाले तमाम रहनुमाओं का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हार्नोर अन्ना शिंदे ने कहा कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत में शिवसेना आम आदमी के लिए तरक्की पर मबनी काम कर रही है। इसी वजह से बड़ी तादाद में कारकुन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं बाबा साहब डांगे ने कहा कि शिवसेना का असल नज़रिया और अवामी मफाद की पॉलिसी को देखते हुए हमने शिंदे ग्रुप में शामिल होने का फ़ैसला किया है। इस सियासी शमूलियत के बाद ये क़यास आराइयाँ तेज़ हो गई हैं कि आने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में शिवसेना शिंदे ग्रुप को मज़ीद तक़वियत मिल सकती है, लेकिन दल बदलने वाले सियासी रहनुमाओं को अवाम कितना साथ देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। त्या शिवसेनेत होतो, आता ह्या शिवसेनेत आलो। बाळासाहेब आहेत, शिवसेना अक्षर आहे, भगवा झेंडा आहे, आम्हाला तेच पाहिजे। या शहराची जी मानसिकता आहे ती युतीची आहे। शिवसेना भाजप युती ही लोकांना हिंदू मतांचं विभाजन होऊ नये म्हणून पाहिजे आणि इकडे शिवसेना भाजप युती आहे त्याचा विचार करावा लागला। शेवटी विकास कामं शहराची आमच्या प्रभागाची महत्त्वाची आहे, त्या सगळ्याचा विचार करून हा निर्णय घ्यावा लागला। याच्या अगोदर शिवसेना स्वबळावर लढलेली आहे। आमचे नेते ते मी त्यांना काय प्रतिक्रिया देणार, ते नेते। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात हर शहरी तक पहुँच सके
इस गर्ज से इंतज़ामिया आवाम दोस्त बनकर शफाफियत के साथ काम करे। ये हिदायत हुकूमत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने दी। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस औरंगाबाद में चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल की सदारत में डिवीजन की जायजा मीटिंग मुनक़िद हुई। मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर, 8 अजला के जिला कलेक्टर्स, जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने हर जिले में जारी सरकारी फलाही स्कीमों की तफसीली जानकारी हासिल की। उन्होंने हिदायत दी कि स्कीमों के निफाज में दरपेश रुकावटों को फौरी तौर पर दूर किया जाए और कामों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि अवाम को स्कीमों की मालूमात आसान ज़बान और मकामी लहजे में दी जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इन स्कीमात का फ़ायदा उठा सकें। चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बाहमी तालमेल पर जोर देते हुए कहा कि इंतज़ामिया के तई अवाम में मुस्बत तासुर कायम होना ज़रूरी है। उन्होंने ज़ेर इल्तिवा मामलात को भी जल्द निपटाने और खिदमात में शफाफियत और रफ्तार बरकरार रखने की हिदायत दी। मीटिंग में महकमे महसूल के कामकाज, ज़मीन से मुताल्लिक़ मसाइल, कुदरती आफात, बुनियादी ढांचे के मंसूबे, प्रधानमंत्री आवास योजना देही, चीफ मिनिस्टर एग्रीकल्चर सोलार स्कीम, देही सनतों की तरक्की और 7/12 रिकॉर्ड में खरीद व फरोख्त के मामलात पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। डिविजनल कमिश्नर जितेंद्र पापड़कर ने खिते में नाफिज मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से मुताल्लिक़ मौजूदा सूरत हाल और आइंदा मनसूबा बंदी पर रोशनी डाली। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत के बाद अब देखना ये होगा कि इंतज़ामिया इन अहकामात पर किस हद तक मौसर अमल दरामद करती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तलबा को नकल से बाज रखने के लिए कई अहम फ़ैसले लिए हैं, जिनमें से एक फ़ैसला ये भी है कि गुज़िश्ता इम्तहानात में जो तलबा मास कापी करते हुए पकड़े गए थे और इंतज़ामिया ने उनके मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिए थे, उन तलबा को अपने मोबाइल फ़ोन वापस हासिल करने के लिए 300 रुपयों की बजाय 5000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये इत्तला मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाज़रीन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने इम्तहानात को नकल से पाक बनाने के लिए सख्त कार्रवाई शुरू की है। इम्तिहानी मराकज़ के अचानक दौरों के दौरान वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी ने इम्तिहान हॉल में इज्तिमाई नकल पकड़ी थी, जिसके बाद जिन तलबा के मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए थे, अब उन्हें अपने मोबाइल वापस हासिल करने के लिए 300 रुपयों की बजाय 5000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। ये इत्तला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर BN डोले ने दी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात देते हुए BN डोले ने बताया कि जिन कॉलेजों में इज्तिमाई नकल के मामलात सामने आए हैं, उन तमाम तलबा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन तलबा की मुकम्मल तालीमी कारकर्दगी यानी पूरा इम्तहानी नतीजा मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नकल के दौरान जब्त किए गए मोबाइल फ़ोन्स के लिए पहले 300 रुपये जुर्माना मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब उसकी जगह 5000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। BN डोले के मुताबिक इस सख्त जुर्माने का मकसद तलबा को नकल जैसी हरकत से बाज रखना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तरह की कार्रवाई से तलबा आइंदा नकल करने की जुर्रत नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन दिनों यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन इम्तहानात जारी हैं और नकल के किसी भी मामले को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से कॉलेज इंतज़ामिया और तलबा दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की इस कार्रवाई से तलबा में सख्त पैगाम गया है कि इम्तिहानात में शफाफियत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कॉपी प्रकरणामध्ये त्यावेळेला जे प्रकरण झालं त्यामध्ये कॉपी आणि मोबाईल पकडण्यात आले। आता यामध्ये दोन प्रकार असतात, एक कॉपी करणे म्हणजे मोबाईल कॅरी न करणे आणि दुसरा प्रकार आहे कॉपी विथ मोबाईल म्हणजे मोबाईल कॉपी। आणि अशा प्रकरणामध्ये आपण ज्या विद्यार्थ्यांकडून कॉपी पकडण्यात आली आणि मोबाईलही, तर मोबाईलसाठी 5000 रुपये दंड आकारण्यात येतो आणि कॉपी जर केलेली असेल तर त्यामध्ये त्याचा होल परफॉर्मन्स कॅन्सल करण्यात येतो। यासाठी एक कमिटी आहे, तीच 4850 नावाची कमिटी असते, ती कमिटी यामध्ये डिसिजन घेते आणि अशा विद्यार्थ्यांचा होल परफॉर्मन्स कॅन्सल त्याचबरोबर 5000 रुपये दंड आकारून विद्यार्थ्यांनी मोबाईल परत घ्यायचा असतो। यामध्ये असं आहे की पूर्वी तरतूद नियमानुसार 300 रुपये, परंतु 300 रुपयामुळे विद्यार्थी
मोबाईल कॅरी करत होता, कारण ती अमाऊंट फार छोटी होती. 5,000 रुपये दंड आकारण्यासाठी ज्या वेळेला या कमिटीचा अध्यक्ष मी होतो 24मध्ये, तर 48/5ची कमिटीचा अध्यक्ष असल्याकारणे असं लक्षात येत होतं की मोबाईलची संख्या अधिकाधिक होत आहे, विद्यार्थ्यांमध्ये भीती नाही आहे आणि त्यामुळे विद्यार्थी राजरोसपणे हॉलमध्ये मोबाईल वापरत होते. मी या कमिटीचा अध्यक्ष असताना आम्ही सर्व समिती सदस्यांनी विचार केला की जर आपण 5,000 रुपये दंड आकारला तर विद्यार्थी मोबाईल कॅरी करणार नाही आणि याच्यावर बऱ्याच प्रमाणामध्ये आता आळा बसत आहे. आज़ाद कॉलेज में हमने ज़करिया साइंस एक्सप्लोरेशन 2025 का इनेकाद किया. इस साइंस एक्सप्लोरेशन के अंदर मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है. 145 स्टूडेंट्स यहाँ पर तकरीबन 45 स्कूल से आए. इनमें ज़्यादातर जो है तो जो बच्चे आए हैं ये अक़लियती इदारों से आए हैं. उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को हमने तरजीह दी है. सभी उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो अक़लियती इदारे हैं वहाँ से इन बच्चों ने इसके अंदर हिस्सा लिया. 6 डिपार्टमेंट्स वहाँ पर एक्सपेरिमेंट सेट किए गए थे साइंस के, और इन बच्चों ने इन 6 डिपार्टमेंट को विज़िट दिया है अलग अलग बैचेस के अंदर. खुद एक्सपेरिमेंट्स भी करके देखे और मुझे खुशी इस बात की है कि ये 9th और 10th के स्टूडेंट्स ने वहाँ पर बहुत सारे सवालात कंसर्न प्रोफेसर हजरात से पूछे, जिनके जो तो तसल्ली बख्श जवाबात उन प्रोफेसर के ज़रिए से उनको हासिल हुए. इसके बाद में 2 म्यूज़ियम यहाँ पर हमारे पास जो नए बनाए गए, जिसमें हिस्ट्री म्यूज़ियम है और साथ ही साथ कंप्यूटर म्यूज़ियम है. ये दोनों म्यूज़ियम को बच्चों ने विज़िट की, वहाँ पर रखी हुई चीज़ें देखी, और ये दिन भर सुबह 9 बजे से शाम में 5 बजे तक के बच्चे तकरीबन इसके अंदर जो तो मसरूफ़ रहे. मैं ममनून और मशकूर हूँ उन स्कूल्स का. हमने यहाँ पर 75 जो है तो स्कूल्स को इनवाइट किए थे, जिसमें से 45 स्कूलों ने जो तो मुस्बत यहाँ पर हमको जवाब दिया और बच्चे भेजे. बाकी वालों की भी यहाँ पर बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन चूँकि इंस्पेक्शन वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से उनका हो रहा था तो इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए. इंशाल्लाह ऐसे लोगों के लिए हम जल्द ही आगे जो है तो दूसरा साइंस एक्सप्लोरेशन का सेशन रख सकते हैं, रखने वाले हैं. और इस बहाने से मैं यहाँ पर जितने तमाम टीचर्स हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जो टीम है ज़करिया साइंस एक्सप्लोरेशन के अंदर हिस्सा लेने वाली, इन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि बड़े अच्छे हद तक इन्होंने यहाँ पर इसके अंदर कामयाबी के अंदर हिस्सा लिया है. और साथ ही साथ PhD रिसर्च स्कॉलर्स इन्होंने भी यहाँ पर इसमें मदद की है. हमारे सीनियर कॉलेज और जूनियर कॉलेज के लाइजनिंग ऑफिसर्स के तौर पर भी ये बहुत सारे टीचर्स ने इसके अंदर हिस्सा लिया, और दिन भर का ये जो साइंस एक्सप्लोरेशन है बड़े अच्छी तरीके से चला है. इसे देखते हुए जिला परिषद की तरफ से हमें रिक्वेस्ट की गई है ताकि कुछ रूरल एरियाज़ के स्कूल्स के बच्चे इसमें हिस्सा लें, और कल यानी कल 16 तारीख को बरोज़ मंगल ये बच्चे रूरल स्कूल्स के बच्चे हमारे पास आने वाले हैं, और हम उनके लिए ये कल के दिन भी एक्सप्लोरेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं. शुक्रिया, थैंक यू. हर साल की तरह इस साल भी PD जवड़कर पब्लिक स्कूल में तलबा के दरमियान जगन्माता शारदा तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. हर साल की तरह इस साल भी औरंगाबाद वैद्य विज्ञान अनुसंधान संस्था और विश्व फाउंडेशन शिवापुरी अक्कलकोट के इश्तिराक से जगन्माता शारदा तकरीरी मुकाबले मुनक़िद किए गए, जिसका इफ्तिताह आज जोश खरोश से अमल में आया. प्रोग्राम के आगाज़ में शिवापुरी के ट्रस्टी रामदेव दादा चौधरी धामनगांवकर के हाथों हवन किया गया. सबसे पहले श्री गजानन महाराज और भगवती शारदा माता की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए. बाद अज़ां पुष्पाताई संदीपान भूमरे के हाथों चिराग रोशन करके मुकाबलों का आगाज़ किया गया. इस मौके पर मुंतज़मीन SP जवड़कर, गोविंद आपटे, संजय अग्रवाल, मुरलीधर बंसोड़े, अर्चना जवड़कर, प्रकाश जवड़कर और वैशाली कहालेकर समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे. इस मौके पर SP जवड़कर ने कहा कि जगन्माता शारदा तकरीरी मुकाबला तलबा के लिए एक हकदाराना प्लेटफॉर्म है. उन्होंने अग्निहोत्रा के बारे में तफसीली मालूमात दी और शिवापुरी अक्कलकोट व जगन्माता शारदा तकरीरी मुकाबले के पस मंज़र पर रोशनी डाली.
इस साल मुकाबले का 31वां साल है और ये मुकाबले पीडी जवड़कर पब्लिक स्कूल सातारा इलाके में मुनक़िद हो रहे हैं। आज मराठी मीडियम के पहले ग्रुप जिसमें 5वीं तथा 7वीं जमात के तलबा शामिल थे, इन स्टूडेंट्स ने पुरअसर अंदाज में तकारीर पेश की। इस ग्रुप के लिए मौज़ूआत में ज़हनी सुकून के लिए अग्निहोत्रा, ज़िंदगी का सुतून, अक़दार, अहिंसा, एक मिसाली तर्ज़ ज़िंदगी, संत गाड़गे बाबा की तालीमात जैसे उन्वानात शामिल थे। इस ग्रुप के लिए जेवरी के फ़रैज़ रविंद्र तमेवार, सुरेखा पवार, विकास राउत और चांगदेव कोरडे ने अदा किए। प्रोग्राम की निज़ामत वनीता काटकर और ज्योति ठाकरे ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म प्रदीप विखे ने अदा की। आज मराठी मीडियम जमात 5वीं तथा 7वीं के ग्रुप में 128 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मुकाबले के इनेकाद के लिए अमर दादा चौधरी, धामन गांवकर, सविता खामगांवकर, योगेश पाटिल, विजय गोरले, शशिकांत सिंघाशी, परमेश्वर गायकवाड़, ज्योति कोकाटे, सुशीला राजूरे, विजय साबळे और दीगर ने अहम रोल अदा किया। अगदी या तत्वासमोर आपले अहंकार, राग, ताण आणि दुःख विसर्जित करणे हे अग्निहोत्राचे सार आहे। त्यामुळे मन शांत होते आणि वातावरण शुद्ध होते। माझे नाव काव्य गजानन पाखरे। मला ही जगन्माता शारदा वक्तृत्व स्पर्धा खूप आवडली। इथे आम्हाला सकाळी खायला सुद्धा होतं व कॉम्पिटिशनमध्ये मला काही भीती वाटली नाही। आम्हाला सगळं इथे असं मस्त वाटलं आणि ही स्पर्धा दरवर्षी घ्यावी असं मला वाटतं। इथे सगळे विषय खूप चांगले होते। माझा विषय होता संस्कार जीवनाचा आधारस्तंभ आणि माझ्यासोबत माझे पप्पाही आले होते। मला ही स्पर्धा खूप आवडली। अशी स्पर्धा दरवर्षी घ्यावी हीच माझी विनंती आणि थँक्यू। मेरा नाम है शेख है। मुझे ये स्पर्धा बहुत अच्छी लगी। हमें ये स्पर्धा हमेशा लेनी चाहिए, हर साल लेनी चाहिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस में मौजूद जीबी हॉल की मरम्मत और तज़ीन कारी का काम आखिरी मरहले को पहुंच चुका है। नाजरीन, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात गुज़िश्ता टर्म में साल 2015 में हुए थे और उसकी मियाद अप्रैल 2020 में ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद कॉरपोरेशन तहलील कर दी गई थी। लेकिन कोरोना और दीगर तकनीकी वजूहात के सबब औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात इल्तिवा में पड़ गए थे और तभी से औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ामात एडमिनिस्ट्रेटर के सुपुर्द कर दिए गए थे। गुज़िश्ता 5 सालों से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात न होने की वजह से मेयर, डिप्टी मेयर, अपोजिशन लीडर, हाउस लीडर और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन और दीगर ग्रुप लीडरों के दफातर कई बरसों से खाली पड़े थे। इंतज़ामिया की जानिब से इंतखाबात के ऐलान से कबल ही जीबी हॉल और उहदेदारान के दफातर की मरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिया गया था। हाल ही में तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात का ऐलान होने के बाद आइंदा साल 15 जनवरी को राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके फ़ौरन बाद ओहदेदारान अपने अपने दफातर में जिम्मेदारियां संभालेंगे, जिसके पेश नज़र इंतज़ामिया ने मुताल्लिक़ा एजेंसी को काम तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने के अहकामात दिए हैं। इत्तला के मुताबिक इस वक्त जीबी हॉल का काम आखिरी मरहले को पहुंच गया है, ताहम अमली तौर पर उसमें भी अभी 1 माह से ज़ायद का वक्त लग सकता है। इस मौके पर जीबी हॉल एक मुनफरिद और जदीद रूप में नजर आएगा। यहाँ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम, काउंसलर्स के लिए नशिस्तों का बेहतर इंतज़ाम, प्रेस गैलरी और तमाशाइयों के लिए अलहदा गैलरी भी दस्तयाब होगी। बड़ौदा वार्ड में परिषद के महोत्सवी इजलास का आगाज़ जुमा से होगा, जिसकी सदारत बाबा भांड करेंगे। ये इत्तला ऑर्गेनाइजर्स ने दी है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की सरपरस्ती में कायम बड़ौदा वार्ड में परिषद गुज़िश्ता 9 दहाइयों से महाराष्ट्र से बाहर मराठी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। इस साल परिषद का अमृत महोत्सवी साल है और ये अदबी इजलास महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के नाम ममनून किया गया है। इजलास की सदारत मारूफ मुहक़्क़िक़ और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ सवानह साधना प्रकाशन समिति के सेक्रेटरी बाबा भांड करेंगे। बाबा भांड ने महाराष्ट्र हुकूमत से साकेत प्रकाशन और महाराजा सयाजीराव तहक़ीक़ व तरबियती इदारे के ताउन से अब तक 60,000 सफ़ात पर मुश्तमिल 255 से ज़ायद किताबें शाये की हैं। इस अदबी इजलास का आगाज़ 19 दिसंबर को ग्रंथ दिनटी के बाद होगा। इजलास का इफ्तिताह
राजमाता शुभंगी निराजे गायकवाड़ करेंगे। इस्तकबालिया सदर गुजरात असेंबली के चीफ व्हिप बालकृष्ण शुक्ला होंगे। मेहमानाने खुसूसी के बतौर बड़ौदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर पिंकी बेन सोनी और महाराष्ट्र स्टेट मराठी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर श्यामकांत देवरे शरीक होंगे। इस मौके पर इजलास के सदर बाबा भांड का सदारती खिताब भी होगा। इफ्तिताही तकरीब में मंदा हिंगोराव की तदवीन में शाये होने वाली महाराजा सयाजीराव तस्वीर सवानह और मुसन्निफीन, नाशरीन और कुतुब खानों के सरप्रस्त महाराजा सयाजीराव इन 2 किताबों की रस्म इजरा अंजाम दी जाएगी। दूसरे दिन यानी 20 दिसंबर को सुबह के सेशन में खुशनवेश घनश्याम एरंडे की अक्षर संस्कार के उन्वान से वर्कशॉप मुनक़िद किया जाएगा। दोपहर के सेशन में महाराजा सयाजीराव के मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर एक सेमिनार होगा, जिसमें मकोलिका दाभाड़े, योगेश शाईवाले, अनिल पुरानिक, डॉक्टर राजेंद्र मगर और दिनेश पाटिल अपने तहकीकी ख्यालात पेश करेंगे। शाम के सेशन में सुरमानुस बड़ौदे की पेशकश गाने मना मनातली के उन्वान से मौसीकी का प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। तीसरे दिन 21 दिसंबर को यानी सयाजी नगर ने दिए हुए मराठी अदीब के मौजू पर सेमिनार मुनक़िद होगा, जिसमें निशा कालोस्कर, डॉक्टर संजय नातो, नवीदता थोरात, प्रसाद देश पांडे और डॉक्टर भाग्यश्री आशुतोष वडोले अपने ख्यालात पेश करेंगे। दोपहर के सेशन में कसीर लिसानी मुशायरा मुनक़िद होगा, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ ज़बानों के शायर अपना कलाम पेश करेंगे। इसी दिन शाम को इख्तितामी तकरीब मुनक़िद होगी, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर महाराष्ट्र स्टेट मराठी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गिरीश पटके शरीक होंगे। इख्तितामी तकरीब में महाराजा सयाजीराव के कारनामों पर मबनी ऑडियो विजुअल फिल्म भी दिखाई जाएगी, जबकि इजलास का इख्तिताम संदीप पाठक के एक बॉबी ड्रामा वरहार निघाले लंदनला से होगा। जालना में साल 2012 में पेश आए 2 साला मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती और उसके कत्ल के मामले में सज़ा याफ्ता मुलजिम की रहम की अपील सदर जमहूरिया हिंद ने मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद मुजरिम को जनवरी के महीने में फांसी की सज़ा दी जाएगी। नाजरीन, साल 2012 में जालना में एक इंतहाई अफसोसनाक और दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया था, जिसमें 2 साला मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती के बाद बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया था। इस संगीन जुर्म की तफ्तीश उस वक्त राजेंद्र सिंह गौर ने की थी। इस केस के असल मुलजिम रवि अशोक घुमारे को जालना सेशन कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी। बाद असां बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। अदालती मराहिल मुकम्मल हो जाने के बाद मुजरिम ने सदर जमहूरिया के पास रहम की अपील दायर की थी, लेकिन सदर जमहूरिया ने भी इस रहम की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। रहम की अपील मुस्तरद हो जाने के बाद अब मुलजिम रवि अशोक घुमारे को जनवरी के महीने में फांसी दी जाएगी। इस बात की तस्दीक जालना के पुलिस सुपरिंटेंडेंट अजय कुमार बंसल ने की है। इस मामले में अदालतों के तमाम फैसले बरकरार रखे गए हैं। सदर जमहूरिया की जानिब से रहम की अपील मुस्तरद होने के बाद 2012 मध्ये कदीम जालना पोलीस स्टेशन हद्दीत एक घटना घडली होती, ज्यामध्ये एक 2 वर्षाची मुलीचा बलात्कार करून एका नराधमाने त्याचा मर्डर पण केला होता आणि त्यावेळी मोठा रोष पूर्ण जिल्ह्यात आणि राज्यात उमटला होता। आणि त्या गुन्ह्याचे तपासी अधिकारी श्री राजेंद्र गौर होते, जो सध्या पुणे जिल्ह्यामध्ये DYSPच्या दर्जावर आहे। त्यांनी चांगली तपास केली। त्यावेळेचे SP मोहिते साहेबांनी पाठपुरावा केला, त्यातून त्याला निचली अदालतने मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्यात आली होती। त्याच्यानंतर तो उच्च न्यायालयात गेला, उच्च न्यायालयानंतर सुप्रीम कोर्टात गेला आणि पण सगळे ठिकाणी त्याची फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली। आणि आता शेवटी आरोपींनी माननीय राष्ट्रपती महोदयाकडे पण माफीची अर्ज केली होती, पण त्याच्या पण आम्ही आमचा बाजू मांडली आणि ते बघून ते नकारण्यात आलेली आहे। आणि आता त्याला जनवरी महिन्यामध्ये फाशी देण्याची तारीख निश्चित झालेली आहे। तो आरोपीचं नाव रवि अशोक घुमारे असा या माणसाचं नाव आहे, ज्यांनी हा ड्रॅगन कृत्य केला होता। तर त्याचा फाशी आता नक्कीच सुनिश्चित झालेली आहे आणि नक्कीच त्याच्या एक समाजामध्ये एक स्ट्रॉंग मेसेज जाणार आहे की कायद्याच्या दृष्टिकोनातून जरी थोडा वेळ लागला पण न्याय नक्कीच होतो। आणि त्यासाठी सर्व ज्यांनी पाठपुरावा केला आणि जो आयो होते, खास कर राजेंद्र गावरे साहेब,
याच्यासाठी खूप कौतुक आहे. नायलॉन मांझे का कारोबार करने वाले 5 अफराद को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से लाखों रुपये मालियत का नायलॉन मांझे का एक बड़ा ज़ख़ीरा जब्त किया गया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक नायलॉन मांझे की फ़रोख्त से मुतालिक क्राइम ब्रांच को खुफिया खबर मिली थी। इसी मुसद्दक़ा इत्तला की बुनियाद पर 15 दिसंबर की रात 9:40 से 16 दिसंबर की सुबह 4 बजे तक रंजन गाँव, बजाज नगर, छत्रपति नगर, वड़गांव कोल्हाटी और ढिम्बर गली बेगमपुरा इलाकों में क्राइम ब्रांच की टीम ने लगातार छापे मारे। इन कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने बड़ी मिकदार में नायलॉन मांझे का ज़ख़ीरा जब्त किया और रुद्र अंकुश बरसे, भागवत जाधव, राज जगताप, रोहन ढेंगड़े और संदीप डुफड़े नामी 5 अफराद को हिरासत में लिया, जिनके कब्जे से तकरीबन 2,70,000 रुपये मालियत का नायलॉन मांझा जब्त किया गया। नायलॉन और चाइनीज़ मांझा इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रहा है, जिससे शहरियों के साथ साथ परिंदे और जानवरों की जान को भी संगीन खतरा लाहक हो गया है, जिसके पेश नज़र पुलिस कमिश्नर ने नायलॉन मांझे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, फ़रोख्त और इस्तेमाल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी किए हैं। पुलिस कमिश्नर ने शहरियों से अपील की है कि अगर कहीं नायलॉन मांझे की फ़रोख्त या ज़ख़ीरा करने की इत्तला मिले तो फ़ौरन टोल फ्री नंबर 112 या कंट्रोल रूम नंबर 0240-2240-500 पर इत्तला दें। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से मकर संक्रांति के दौरान शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने में अहम मदद मिलने की उम्मीद है। जालना के एसपी अजय बंसल के मुताबिक सरपंच संतोष देशमुख के कत्ल मामले में मुलव्विस 6 मुलजिमों पर मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी। जालना के एसपी अजय कुमार बंसल ने इस ज़िमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताया कि मुलजिमों के खिलाफ मजबूत शवाहिद मौजूद हैं और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। विकास लोंडे कत्ल केस में मुलव्विस 6 मुलजिमों के खिलाफ मौका कानून नाफिज किया गया है। ये मुकदमा खुसूसी मौका अदालत में चलेगा और पुलिस की जानिब से तफ्तीश पूरी संजीदगी के साथ जारी है। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौका लगने के बाद अब इस कत्ल केस में मुलजिमों के लिए कानूनी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। 25 ऑक्टोबर रोजी कदीम जालना पोलीस स्टेशन हद्दीत एका तरुण विकास लोंढे याची निर्घृण हत्या एका टोलीने केलेली होती आणि त्या 5 आरोपीला त्याच दिवशी पोलिसाला अटक करण्यामध्ये यश आला होता आणि अजून एक आरोपी 6 आरोपी आतापर्यंत अटक केले आहे। 2 अजून आरोपीची शोध आम्ही घेत आहोत। याच्यामध्ये हा टोली मोठी गुन्हेगार टोली होती आणि त्याच्यावर 18 गुन्हे टोलीवर आतापर्यंत दाखल आहे। ते बघून याच्यावर मोका लागला पाहिजे अशा आमची एक धारणा होती आणि त्यातून माननीय स्पेशल आयजी सरांना प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला होता आणि त्यांनी मेरिटवर या आमच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिलेली आहे आणि आता या केसमध्ये मोका कलम लावण्यात आलेली आहे, ज्यातून याच्या केस पण विशेष मोका कोर्टमध्ये चालेल सो दॅट त्याची अंडर ट्रायलमध्ये यांना शिक्षा झाली पाहिजे याचा प्रयत्न आमचा आहे। त्यासाठी जो काही लागणार आहे ती सगळी सायंटिफिक तपास आता आम्ही करत आहोत। DYSP जालना श्री अनंत कुलकर्णी याची तपास ऑलरेडी करत आहे अॅट्रॉसिटी लागल्यामुळे, आता मोका कायद्याप्रमाणे ते करणार। या वर्षी ही जालना पोलिसातली 3री आमची मोकाची कारवाई आहे आणि तसेच MPDA मध्ये पण 10 प्रस्ताव आम्ही केलेले आहे आणि अजून ही कारवाई असा सुरू राहणार आहे। 2 ते 3 मोका आणि अंदाजा 10 MPDA आमच्या वेगवेगळ्या स्टेजवर आहे, ते पण लवकर आम्ही करणार। कुठलीच ही टोली आहे कोणी असे गँग सारखा करण्याचा प्रयत्न करणार तर ते आमच्या रडारमध्ये आले की जेलमधून बाहेर येणार नाही, याचा पूर्ण बंदोबस्त जालना पुलिस करतील असा मी सर्वांना आदेश दिलेला है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जोश खरोश से मनाया गया शहर में विजय दिन। डिफेंस कैरियर एकेडमी के तलबा ने शहर में किया विजय मार्च। इलाके पर चढ़ने लगा था हुब्बुल वतनी का खुमार। मफाद आम्मा की खातिर इंतजामिया शफाफियत से काम करे। हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात का जायजा लेने के बाद चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने दी औरंगाबाद डिवीजन के अफसरान को हिदायत।
مولانا آزاد کالج کے احاطے میں منعقد کیا گیا زکریا سائنس ایکسپلوریشن 2025 45 اسکولوں کے 145 طلباء نے کی شرکت. سائنسی تجربات اور میوزیم کا مشاہدہ کرنے کے بعد اساتذہ سے پوچھے کئی اہم سوال. پرنسپل ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی نے دی اطلاع. اور سال 2012 میں جالنہ میں 2 سالہ معصوم بچی کے ساتھ ہوئی زیادتی اور قتل معاملے کے ملزم کی صدر جمہوریہ نے مسترد کر دی رحم کی اپیل. عدالتی فیصلوں پر صدر جمہوریہ کی مہر ثبت ہو جانے پر مجرم کو جنوری کے مہینے میں دی جائے گی پھانسی. ایس پی اجے بنسل نے دی وضاحت. اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.